Hello friends, today's topic is one of the very important topic, that is a refraction due to spherically curved surface, right? अब यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम में एंड इमेज विल फॉर्म एट डेंस मीडियम। ओके, इसके दो केस है और ये दोनों केस हम करवाएंगे टेक्स्ट बुक में, खाली एक केस है। ओके, तो हम दो केस क्यों कर रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लेंस, जिसमें हम लेंस फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो ये दोनों इक्वेशन यूज होंगे। ओके, तो यू कम टू नो कि ये किस तरह से हो रहा है। ओके, सो रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, राइट फ्रेंड्स। सो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि ये एक हमारा मीडियम है, राइट। सो यू कैन से इट इज लाइक दिस। ओके, एंड वी कैन से it is principal axis, right? Principal axis, you can say it is a, and you can say it is a m। ओके, और यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। सो यू कैन से दिस पॉइंट इज p, और एम पी मतलब थिन लेंस के लिए m बोलो या p बोलो, दोनों एक ही रहेगा, राइट। और हियर वी कैन से कि ये पॉइंट को हम कह देते हैं P और इसको हम कह देते हैं M। P एंड M दोनों नियरली सेम ही पॉइंट है, राइट फ्रेंड्स। चलो, नाउ हियर वी कैन से O is a position of object। okay, so a ray is moving in this direction। okay, and then image will form somewhere here। okay, so here we can say I is a point where image is formed। what you can say, I is a point where image is formed, and here you can say this point is a C। मतलब ये कर्वेचर इस तरह से है, बराबर, ये कर्वेचर इस तरह से है, तो उसका दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा। ओके, और यहाँ पर हम एक नॉर्मल कंसीडर करते हैं, दैट इज लाइक दिस। ओके, so here we can say that this angle of incident is I, angle of refraction it is R, or we can say this angle is a alpha, this angle is a beta, and you can say this angle is gamma, alpha, beta and gamma, right। और हम जो m से डिस्टेंस मेजर करेंगे, दैट इज p इज इक्वल टू m, राइट। सो यहाँ पर ये रहेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज a u, radius of curvature that is a r, and you can say image distance that is a v। okay, mi is equal to image distance that is a v। okay, यहाँ पर ये जो रेयर मीडियम है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ईटा 1, और जो डेंस मीडियम है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ईटा 2। ओके, सो आई थिंक द डायग्राम इज कंप्लीटली क्लियर, राइट। यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि P पॉइंट एंड M पॉइंट दोनों नजदीक में है। ओके, सो P इज इक्वल टू M हम कंसीडर करेंगे। दूसरी चीज हम यहाँ पर कंसीडर ऐसा करेंगे दैट फॉर very small angle, what you can say, for very small angle you can say sin theta is nearly equal to theta is nearly equal to tan theta। ओके, मतलब sin theta is nearly equal to theta and that is nearly equal to tan theta, ये हम यूज करेंगे, बराबर। ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर डेरिवेशन। ओके, सो जस्ट फोकस हियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं एट पॉइंट n
अप्लाई स्नेल्स लॉ। ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। ओके, so we can say apply Snell's law at point A। ओके, तो क्या होगा, that is eta 1 sin I that is equal to eta 2 sin R। ओके, as angle is very small, therefore you can say sin I is nearly equal to I and sin R is nearly equal to R। Okay, so our equation will be eta 1 I that is equal to eta 2 R। You can say this equation number star, or you can say this equation number 1, it is main equation, right friends। चलो, अब यहाँ पर इन ट्राइंगल NOC, in triangle NOC, you can say I is the external angle। So what is the I? I is equal to alpha plus beta। And in triangle NCI, beta is the external angle। So what is the beta? That is the R plus gamma, right friend। तो यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल का कंसेप्ट हम ले रहे हैं। पहले हम एंगल कंसीडर कर रहे हैं NOC। इन ट्राइंगल NOC I is a external angle। in triangle NOC I is external angle, therefore you can say I is equal to alpha plus beta। You can say equation number 2। and in triangle NOC में ले लिया। now NCI, beta is external angle, NCI beta is external angle, therefore beta is equal to क्या होगा, R plus gamma, R plus gamma। that implies you want to find R। R is equal to क्या होगा, that is a beta minus gamma। you can say equation number 3। now substitute 2 and 3 in 1। substitute 2 3 in 1, right। so what is the 1? Eta 1 I। what is the I is alpha plus beta is equal to eta 2 R। what is the R? that is a beta minus gamma। now open the bracket। so eta 1 alpha plus eta 1 beta is equal to eta 2 beta minus eta 2 gamma। ओके, अब यहाँ पर ये है बीटा और ये है बीटा। ओके, और ये अल्फा को हम अपोजिट डायरेक्शन में ले आते हैं। तो ईटा 1 अल्फा प्लस ईटा 2 गामा इज इक्वल टू ईटा 2 माइनस ईटा 1 इंटू बीटा। ओके, यू कैन से इट इज इक्वेशन नंबर 4, राइट। चलो, यहाँ तक हम पहुँच गए। इट इज वेरी इजी। ओके, now as alpha, beta and gamma are very small, we can say as alpha, beta and gamma are very small, therefore you can say tan alpha is nearly equal to alpha, tan beta is nearly equal to beta, ये हमें फाइंड करना है। ओके, एंड
tan gamma is nearly equal to gamma. Okay, just say what is the tan alpha? That is nm upon om. That is what nm upon om. Tan beta nm upon mc. Tan gamma nm upon mi. Okay, so tan alpha, that is nm upon om, that is nm upon om. Tan beta nm upon mc, and tan gamma, that is nm upon mi. Right, we'll substitute here. So eta 1 alpha है nm upon om. Eta 1 nm upon om plus eta 2 nm upon mc, sorry nm upon gamma है, that is the mi, is equal to eta 2 minus eta 1 nm upon mc. ओके, अब nm कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर यू कैन से eta 1 upon om plus eta 2 upon mi is equal to eta 2 minus eta 1 upon mc. ओके, अब यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, दैट इज यूजिंग साइन कन्वेंशन. Okay, om, that is the object distance, it is a u. Mi, that is the image distance, that is a v. And mc, that is the radius of curvature, that is the r. देखो अब ध्यान से साइन देखो. सो हियर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ये होगा नेगेटिव, ये r होगा आपका पॉजिटिव, और v भी होगा पॉजिटिव, बिकॉज दे आर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. तो खाली u नेगेटिव रहेगा, बाकी के दोनों रहेंगे पॉजिटिव. ओके, u नेगेटिव, ओके ये रहेगा आपका पॉजिटिव और ये भी रहेगा आपका पॉजिटिव. ओके, देयरफॉर माइनस eta 1 upon u plus eta 2 upon v, that is equal to eta 2 minus eta 1 upon r. ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका इक्वेशन, राइट. इसका इक्वेशन, सो इट इज अ रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फीयरिकली कर्व सरफेस. ओके, बट यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये हमने लिया है रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम, राइट. सिमिलर वे, नाउ यू कम टू नो कि किस तरह से डिराइव करना है. सिमिलर वे विल डिराइव फॉर डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम. ओके, सो हियर दैट इज अवर पॉइंट बी. ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट जो लेंस फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज हियर यू कैन से इट इज अ डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम, राइट. मतलब यहां पर ये हो जाएगा आपका इस तरह से. ओके, देन ये हो गया आपका लाइक दिस. ओके, अब यहां पर ये रहेगा ऑब्जेक्ट, ये है पॉइंट P. ओके, सो हम कंसिडर करते हैं रे जाएगा इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पर प्रोड्यूस होगी इमेज, राइट. अब यहाँ पर हम परपेंडिकुलर
ड्रॉ करेंगे, राइट। यू कैन से इट इज अ एम। ओके, चलो अब ये जो है इस तरह से, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पर होगी, तो यहां पर होगी। ओके, सो फ्रेंड यू कैन से इट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज सी। ओके, और यहां पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ओके, सो यू कैन से कि यहां पर ये कुछ इस तरह से होगा, बराबर। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 2 और ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 1, बराबर है। ये है आर और ये है आई। यू कैन से दिस एंगल इज अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, so this angle is alpha, beta and gamma. ओके, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट क्लियर हुआ ना फ्रेंड? क्यों? क्योंकि यहां पर जो कर्वेचर है ये इस तरह से है, बराबर, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर होगा। अगर कर्वेचर इस तरह से होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरह होगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। नाउ वी कैन से कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये डिस्टेंस हो गया आपका r। ओके, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया आपका u। ओके, एंड यू कैन से इमेज डिस्टेंस इज v, बराबर। एंड यू कैन से दिस पॉइंट इज n, दिस पॉइंट इज। चलो अब हम थोड़ा फटाफट जाएंगे। दैट इज एट पॉइंट n अप्लाई स्नेल्स लॉ। एट point n apply Snell's law. Okay, that is eta 2 sin I, that is equal to eta 1 sin r। r है eta 1 में, I है eta 2 में। ओके, so as I and r are very small, so sin I is nearly equal to I and sin R is nearly equal to R. Okay, so eta 2I is equal to eta 2I is equal to eta 1R. You can say it is equation number 1. चलो अब ट्राइंगल NOC में, ट्राइंगल NOC में बीटा इज एक्सटर्नल एंगल। In triangle NOC, beta is external angle. So what is the beta? Alpha plus I. Beta is equal to alpha plus I. And दूसरा हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल NCI में, R is external angle. So what is the R? So R is equal to beta plus gamma. R is equal to beta plus gamma. तो यहां पर मुझे I मिल जाएगा। व्हाट इज द I? बीटा माइनस अल्फा, एंड R मिल गया दैट इज बीटा प्लस गामा। ओके, सो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है बट हमें डिराइव करना है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में यूज करेंगे तो हम डायरेक्टली ही लिख देते हैं। सो यू कैन सी इट इक्वेशन नंबर 2 एंड यू कैन सी इट इक्वेशन नंबर 3। नाउ सब्स्टिट्यूट 2 and 3 in 1. Okay, that is eta 2. What is the I? That is a beta minus alpha is equal to eta 1. What is the R? Beta plus gamma. Therefore, eta 2 beta minus eta 2 alpha, eta 1 beta plus eta 1 gamma. Okay,
अब ध्यान से देखो कि ये जो माइनस ईटा टू है ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये ईटा वन है अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो माइनस हो जाएगा। राइट फ्रेंड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईटा टू बीटा माइनस ईटा वन बीटा, ये अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज द ईटा टू अल्फा प्लस ईटा वन गामा। ईटा टू अल्फा प्लस ईटा वन गामा। राइट, अब थोड़ा सा हम सेट कर देते हैं, दैट इज ईटा टू अल्फा प्लस ईटा वन गामा इज इक्वल टू ईटा टू माइनस ईटा वन into beta. You can say it is equation number 4. Okay, now as we know the angles are very small, so you can say as alpha, beta and gamma are very small, therefore tan alpha is nearly equal to alpha, tan beta is nearly equal to beta, and tan gamma is nearly equal to gamma. Okay, what is a tan alpha? Tan alpha, that is a nm upon om. Nm upon om. Tan beta, nm upon cm. And tan gamma, that is the nm upon mi. ओके, अब यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। ओके, चलो दैट इज चलो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बाद में करते हैं। देयरफॉर सब्स्टिट्यूट अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन नंबर 4। चलो 4 नंबर वाला इक्वेशन हम कॉपी कर ले। सो इट इज द 4th नंबर इक्वेशन। So eta 2, what is the alpha? Nm upon om plus eta 1 gamma nm upon mi is equal to eta 2 minus eta 1 beta nm upon cm। ओके, nm nm सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, राइट, कॉमन एंड कैंसिल। ओके, therefore you can say eta 2 upon om plus eta 1 upon mi is equal to eta 2 minus eta 1 upon cm। ओके, चलो अब साइन कन्वेंशन हम यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया नेगेटिव, आर भी हो गया नेगेटिव, एंड वी विल बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, इसीलिए पॉजिटिव, एंड दिस बोथ आर opposite to incident ray, that's why it is negative, that is r and u negative, v is a positive। okay, eta 2 upon minus u plus eta 1 upon v, that is a eta 2 minus eta 1 cm हो गया आपका माइनस आर। ओके, तो ये इक्वेशन हो गया आपका ऑप्टिकली डेंस मीडियम
to optically rare medium. Okay friends, so it is one of the very important, क्योंकि हमने इक्वेशन किस तरह से लिए हैं इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट? क्योंकि ये दोनों इक्वेशन हम जब लेंथ फॉर्मूला, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो है लेंथ फॉर्मूला, पूरे लेंथ के बारे में है, तो वहां पर ये दोनों इक्वेशन हम यूज करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, सो इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट